Sri Ayodhya Rami Reddy. Mr. Ayodhya Rami Reddy. Sir, Please. at the outset, I thank the chair for permitting me to speak on this important issue on Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2020. Sir, as you are aware, the Arbitration Act was enacted with a view to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral awards, and the law relating to conciliation. The amendment ensures that all the stakeholders get an equal opportunity from the Indian courts to seek unconditional stay of enforcement of arbitral awards where the underlying arbitration agreement or making of the arbitral award is induced by fraud or corruption. The amendment also aims to promote India as a hub of international commercial arbitration. So, when we look at the provision inserted by the bill, stipulates that the court, if satisfied that a prima facie case of fraudulent or corruption has been made out, shall stay the award unconditionally pending disposal of the challenges under the Section 34 of the Arbitration Act. The amendment will prove quite helpful in cases where the inherent illegality by fraud or corruption has been made prima facie shown in the court. However, it will be interesting to see how the courts interpret the burden of proving a prima facie case of fraud or corruption. The provision of the bill will also be tested in instances where parties use it to stall the operation of the award by filing Section 36 application and waste precious time of the court. Courts will have to be cautious in formulating a test for granting an unconditional stay on the operation of the award. The bill seeks to omit 8th schedule of the Act, which laid down the qualifications, experience, and norms for accreditation of arbitrators, and to specify regulations, the qualifications, experience, norms for accreditation of arbitrators. The 2020 amendment directly addresses that concern by removing the 8th schedule altogether from the Act and replacing it with the regulations. It means that the accreditation of arbitrators will now be governed by the criteria laid down in the regulations. It confirms that the concerns of the international arbitration community are reaching the ears of the Indian policymakers, which is a very welcome step. The qualifications of the arbitrators are now to be specified by the regulators which have not yet been notified. However, what these regulations might be, by when they would be released, are some of the questions that have been left unanswered. It is only hoped that practitioners and key stakeholders would be consulted in finalizing these regulations to prevent any further controversy on this issue. Sir, in view of the above, our party supports the Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2020. Thank you, sir. Thank you. माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी, माननीय निषाद जी, आपको बोलने का नाम है, प्लीज प्लीज नहीं बोले. श्री के सोम प्रसाद जी, ऑनरेबल के सोम प्रसाद जी एब्सेंट. प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा अपनी सीट पर जाएं और कृपया बोलें. प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्लीज प्लीज. बाकी सारे लोग अपनी सीट पर जाएं. माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं. प्लीज 1 मिनट. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब सारे अपोजिशन के जितने भी नेता लोग हैं, राज्यसभा मेंबर्स हैं, ऑल पार्टी के नेता हैं, इस जगह खड़े होके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले चर्चा रूल 267 के तहत हमको मौका दीजिए, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर कम से कम रोजाना हजारों लोग बैठकर इस पर डिस्कस नहीं कर रहे. आपने कहा नहीं, और 275 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान दे चुके हैं. प्लीज. और 104 दिन. इस पर डिस्कस नहीं कर रहे. नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ. 100 माननीय एलओपी, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ. प्लीज टेक योर सीट. प्लीज मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा. माननीय एलओपी जी ने कहा, मैंने उन्हें इजाजत दी, उन्होंने अपनी बात कही, आपने सुना. 1 मिनट प्लीज.
माननीय चेयरमैन साहब जिस पर रूलिंग दे चुके हैं, इतने अनुभवी आप सब लोग हैं, आपका लंबा अनुभव है सरकार में रहने और चलाने का, जो ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल है, मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया कार्रवाई चलने दें और इसको आइदर वे डिस्पोज करें। ये हाउस की परंपरा रही है, पिछले कई दशकों से मैंने देखे हैं कि ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल पर कैसे हाउस काम करता रहा। कृपया उस पालन में मेरा सहयोग करें। आप तो बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, मैं आपसे आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन जिस पर डिसीजन दे चुके हैं, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मेरा आग्रह होगा, आप सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस बिल के महत्व को देखते हुए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को देखते हुए कम से कम हम लोग आइदर वे डिस्पोज करें इसको। इसलिए कृपया इस पर अपनी बात जारी रखें प्लीज। जी जी हाँ बोले जी। हम हाउस में डिस्टर्ब करने को आए नहीं, हम हाउस में स्मूथली हाउस चलाने के लिए आए हैं। जब सभी लोग, अरे सबको मालूम है, चुप बैठो प्लीज आपस में बात करें। I know everybody. प्लीज हाउस, I know everybody. प्लीज हाउस की परंपरा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय एलओपी जब बोलते हैं तो शांति रखते हैं। आप सुन ले, हम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप बात करें प्लीज। आप प्लीज, आप में से कोई आपस में बात एक मिनट भाई। सर मेरा इतना ही कहना है, हम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत ही आपको रूल 267 तहत नोटिस दी थी। जब मेंबर्स यहाँ हाउस में है, खड़े हैं, तो दूसरे बिल कैसा ले सकते हैं? ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, और जो ये हो रहा है और हमको रूल सिखाते हैं वो माननीय रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत है, हाउस के रूल्स प्रोसीजर के तहत है कि माननीय चेयरमैन जो डिसीजन दे दिया उसको हम शुरू नहीं कर सकते। प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यस प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर मेरा प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, रूल 169। प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, प्लीज सर, ऑलरेडी माननीय चेयरमैन साहब ने इस पर अपनी ओपिनियन दे दिए, फाइनल निर्णय दे दिया है। मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिमिटेशंस उसमें आपको क्लियर है। सर प्लीज सर, रूल 169 है, 169 नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज सर, रूल 169 है। खड़गे साहब बहुत सीनियर मेंबर है, हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने 267 में नोटिस दिया, ये ठीक है। उसके बाद सुबह हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने हाउस का जो बिजनेस है अगले हफ्ते का वो पढ़ा, और बिजनेस में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स पे डिस्कशन को करने वाली है। सर रूल 169(7) it shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session। जब एक सेशन के लिए सरकार कह चुकी है कि मिनिस्ट्री की चर्चा होने वाली है, तो ये नोटिस अपने आप में इनएडमिसिबल है। प्लीज क्या ये इलीगल नोटिस पे और इलीगल तरीके से संसद को प्लीज अपनी सीट ले, कौन सा रूल आप बता रहे हैं? प्लीज मैं अनुरोध करूंगा, श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार, प्लीज सर, प्लीज रिलेटेड, प्लीज आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, कुछ और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। Chairman for giving this opportunity to Please. speak on this bill.